to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the second part of the solutions to NCERT questions of the fourth chapter of class 9th chemistry, structure of the atom. In this video we will discuss solutions to int exercise 5 to 7 and exercise questions. So let's begin. First question is, how will you find the valency of chlorine, sulfur and magnesium? Chlorine, sulfur और magnesium की valency कैसे निकालेंगे? If the number of electrons in the outermost shell of an atom of an element is less than or equal to 4, then the valency of the element is equal to the number of electrons in the outermost shell. अगर outermost shell में number of electrons जो है वो 4 या 4 से कम होता है तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं in the outermost shell उतनी ही valency होती है. On the other hand, if the number of electrons in the outermost shell is more than 4, then valency is calculated by subtracting the number of electrons in the outermost shell by 8. और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल 4 से ज़्यादा होते हैं तो 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो बचेगा आंसर दैट विल बी द वैलेंसी. फॉर एग्जांपल, अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में, सो 8 - 5 3 विल बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम एटम्स आर 2,8,7 फॉर क्लोरीन, 2,8,6 फॉर सल्फर एंड 2,8,2 फॉर मैग्नीशियम. अब पहला केस है हमारे पास क्लोरीन का 2,8,7. अब 7 इज मोर देन 4, सो वी हैव 8 - 7 1, सो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1. देन सल्फर 6, सो 8 - 6 2, वैलेंसी ऑफ सल्फर इज 2. देन वी हैव मैग्नीशियम 2,8,2. number of electrons in outermost shell of magnesium is 2, which is less than 4, less than equal to 4, then the valency of magnesium is 2. Next, if the number of electrons in an atom is 8 and the number of protons is also 8, then what is the atomic number of the atom and what is the charge on the atom? Atomic number क्या होगा और चार्ज कितना होगा अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही 8 हैं किसी एलिमेंट में? Atomic number is equal to the number of protons, therefore atomic number of the element is 8, and since the number of electron and proton are equal, then atom is neutral, तो चार्ज 0 हो जाएगा. With the help of given table, find out the mass number of oxygen and sulfur atom. ऑक्सीजन और सल्फर एटम जो है उसका मास नंबर निकालना है. सो मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. अब for case of oxygen, number of proton is 8, number of neutrons also 8, so we have mass number of 16 for oxygen. For sulfur, number of proton plus number of neutron equals to mass number. Again, number of proton is 16, number of neutron is also 16, so we have mass number of sulfur to be 32. Next, for the symbol H, D and T, tabulate the 3 subatomic particles found in each of them. H, डी और टी के लिए जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं उनके बारे में बताना है. सो जब एच है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0, इलेक्ट्रॉन 1 यानी कि, और जब डी हो गया तो ड्यूटेरियम फॉर दैट केस प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, और ट्राइटियम में प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 2 और इलेक्ट्रॉन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. एक पेयर आइसोटोप्स का और एक पेयर आइसोबार का, इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. तो आइसोटोप ऑफ कार्बन 6C12 एंड 6C14, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 6C12 के हिसाब से 2,4, और फॉर 6C14 के लिए ऑल्सो 2,4. आइसोटोप्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देन वी हैव फॉर आइसोबार 20Ca40 and 18Ar40 as the pair of isobar, calcium and argon. So यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कैल्शियम इज़ 2,8,8,2 and for argon is 2,8,8. तो आइसोबार में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होता है, आइसोटोप्स में कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम होता है. So now we move to NCERT exercise. First question is, compare the properties of electron, proton and neutron. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना है. केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. एक एटम के न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जबकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो दोनों हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल. द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज negligible
इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो नेग्लिजिबल माना जाता है, जबकि मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है, और जो न्यूट्रॉन का मास है वो इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था एटम का, उसकी कमियाँ क्या थी। सो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर with electrons embedded into it. However, it was later found that positively charged particles reside in the center of the atom called nucleus and the electrons revolve around the nucleus. तो थॉमसन ने ये कहा था कि जो एटम है उसके सेंटर पॉजिटिवली चार्ज एक स्फीयर है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गड़े होते हैं, जबकि एक्चुअली में क्या था कि पॉजिटिव चार्ज जो था वो स्फीयर के अंदर था, कॉल्ड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिवॉल्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड के मॉडल की लिमिटेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, बट एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ विल नॉट बी स्टेबल बिकॉज ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन इट experiences acceleration. Due to acceleration, the electron will lose energy in the form of radiation and fall into the nucleus. In such case, like atom would be highly unstable and collapse. और रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। अगर ऐसा है तो रिवॉल्व होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है इट विल लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाईली अनस्टेबल होगा। एटम जो है एज अ होल विल बी हाईली अनस्टेबल। सो बट इट डज नॉट हैपन बिकॉज एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। नेक्स्ट, डिस्क्राइब बोर मॉडल ऑफ एन एटम। बोर मॉडल ऑफ एन एटम में क्या था, नील बोर प्रपोज द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स रिगार्डिंग द मॉडल ऑफ एन एटम। नील बोर ने क्या बताया, ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम, यानी कि सर्टेन ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर अलाउड। एक एटम में एक सर्टेन ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है। वाइल रिवॉल्विंग इन दिस डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट रेडिएट एनर्जी, और अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। These discrete orbits और shells आर शोन इन द डायग्राम। यहाँ पे डायग्राम में शो किया हुआ है, विच इज सब अंदर से शुरू करते हुए न्यूक्लियस के पास सबसे पहला शेल के शेल, फिर एल, फिर एम, और आउटर मोस्ट शेल जो है वो एन शेल है। द फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल्स टू 1 रिप्रेजेंट्स के शेल, n इक्वल्स टू 2 एल शेल, n इक्वल टू 3 एम शेल, n इक्वल टू 4 एन शेल। दीज ऑर्बिट शेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इन्हीं शेल्स को एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द।